Today we will study the most important circuit of alternating current, LCR series circuit. LCR series circuit has got one resistance, one inductor and one capacitor, all three, and they are in series. And we give power supply to it, and that power supply is AC in nature. So what we are supplying to this circuit is EMF, which is equal to E naught sine omega t. At any instant the EMF across this circuit is E is equal to E naught sine omega t. Now this is a resistor which has resistance R, this is an inductor which has got inductance L, and this is a capacitor which has capacitance C. Okay, now they are in series, and in series we know the rule. The electric current is same in all the components in the series. तो यहाँ से जो current flow होती है, at any instant, if I is current here, then I is current here, I is current here, and I is current here. In all the components, current will be I. Okay. So here the current is I. How much will be EMF across this? Current is same. This is A, because this is in series. So current is same in all components. ओके, अब इसमें कितना EMF डेवलप होगा? यहां पर हम कितना EMF दे रहे हैं? E, जिसकी पीक वैल्यू कितनी जाती है? E, एंड इट कीप्स ऑन वेरिंग. ओके, यहां पर कितना EMF डेवलप होगा? तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस EMF का फॉर्मूला क्या है? करंट इनटू रेसिस्टेंस, I इनटू R. सो हियर दिस विल बी I इनटू R. ओके, L के अक्रॉस कितना EMF बनता है? हमने स्टडी किया है. L के अक्रॉस जो EMF बनता है, दैट इज करंट multiplied by XL, inductive reactance. ये हमने पिछले चैप्टर में स्टडी किया. What is this XL is equal to IL ओमेगा. तो ये जो L बना, इसका अपोजिशन कितना है? तो अपोजिशन है इसका XL, XL, और इसमें EMF कितना डेवलप होगा? इसमें EMF डेवलप होगा V इज इक्वल टू I इंटू XL. ओके, कैपेसिटेंस में रिएक्टेंस कितना होता है? देखिए, कैपेसिटेंस क्या चीज है? कैपेसिटेंस इज a characteristic of the capacitor. It is not opposition to current. Because of that capacitance, it gives certain opposition to current, and that opposition includes frequency also. How much is that? So that is XC. Opposition to current, XC. ये XC कितना होता है? This is 1 upon C omega. और E का रिलेशन क्या होगा? E इज इक्वल टू करंट इंटू XC और करंट इंटू I अपॉन C ओमेगा. ये E डेवलप हुआ किसके अक्रॉस? कैपेसिटर के अक्रॉस. ये E डेवलप हुआ L के अक्रॉस, और ये E डेवलप हुआ रेसिस्टेंस के अक्रॉस I इंटू R. ये तीनों के E डेवलप होते हैं, और इसी को हम यहां लिख लेते हैं E, that is potential difference, voltage, so we can write it V also. So here V is equal to I into XC. Okay.
potential difference across this, potential difference across this, potential difference across this, और कुछ नहीं है. Now in series we have two rules. Rule for current, what is that rule? The current is same in all the components. Rule for voltage, the voltage is divided, and it is divided in such a way that sum of voltage across all the components is equal to the total voltage applied. If we say the total voltage applied has maximum value E naught, then total voltage across this is VR. And how much will be that VR? VR is equal to I naught into R. If we write it V across R, the maximum value is I naught into R. The maximum value for V across inductor is I naught X, and the maximum value across C is I naught into XC. Okay. Now, at any one instant, when the current is flowing through them, the current is same, and the same current we represent by this. Okay. This is current at any time. Okay. How much will be voltage here? The answer is, according to phasor diagram, this is V naught. दोनों का फेज कैसा है? सेम, नो फेज डिफरेंस, फेजर डायग्राम. इंडक्टर, व्हाट हैपेंस टू द करंट एंड द फेज ऑफ द वोल्टेज? द वोल्टेज इज ऑलवेज लीडिंग एंड द करंट इज लैगिंग. तो करंट पीछे और वोल्टेज आगे, तो इस समय ये वोल्टेज का फेज है. दिस इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर L. ओके. This is R. This is across L. और कैपेसिटर में करंट आगे और वोल्टेज पीछे, ये वोल्टेज. This is V. ओके. ये रूल हम सबको पता है. ये दोनों वोल्टेज की मैग्नीट्यूड that may be same, that may be more or may be less. So let us say at any given time they are not equal. Any one is more. Let us say VL is higher and VC is lower at a particular instant. Okay. ये तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों के अक्रॉस. अब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? आंसर है तीनों के सम के बराबर. लेकिन तीनों का सम जो हम करेंगे वो किस तरह से सम करेंगे? तीनों का फेस डिफरेंस है. इसका फेस, इसका फेस और इसका फेस विद रिस्पेक्ट टू करंट, तीनों का फेस डिफरेंट है. तो इसका सम कैसे होगा? तो आंसर है इसका सम वेक्टर के रूल से होगा. तो वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, पर इसके सम में फेज डिफरेंस है, इसलिए हम इसका तरीका वही लेंगे जो वेक्टर्स के लिए लेते हैं. कैसे? देखिए, हियर इज करंट. आई विल मेक इट देयर. ये एट एनी टाइम करंट है. तो वी आर कहां बनेगा? आंसर है वी आर इसकी डायरेक्शन में ही बनेगा. दिस इज वी आर. देन वी एल इज परपेंडिकुलर टू दिस. उस समय वी एल का फेस इधर रहेगा. दिस इज वी एल. ओके. वी सी का फेस करंट से लैग करेगा, सो दिस इज वी सी. ये वी आर, वी एल, वी सी तीनों इस तरह से मूव कर रहे हैं. और ओके, एक आगे एक पीछे, एक अलोंग दी करंट. राइट. अब इसका टोटल कैसे होगा?
तो वेक्टर के रूल हमको ये बताते हैं, दिस v एंड दिस v एड अप द टू। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम क्या देखते हैं, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे? बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। माइनस करने से हमको क्या मिलेगा? देखिए, दिस मैग्नीट्यूड, इसमें से मैंने इसको काट दिया, दिस मच। तो ये जो बचा, ये हाउ मच इज दिस? दिस इज रिजल्टेंट ऑफ द 2। ठीक है, ये अगर 10 है और ये 6 है तो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। ये दोनों का रिजल्टेंट आ गया। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है VL माइनस VC। VL माइनस VC, ये VC के बराबर माइनस कर दिया, ये दोनों का रिजल्टेंट आ गया। अब 1 2 3 में से 2 बचे, एक VR और एक ये VL VC का रिजल्टेंट। इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो इनको ऐड करने के लिए हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, दिस, और ये बना दिया रिजल्टेंट। ये क्या आ गया? सम ऑफ ऑल द 3। तीनों अकाउंट में आ गए। VL VC का ये सम आया और VR के साथ ये सम आया। लेकिन तीनों का सम कितना है? E0। इसलिए ये कौन है? E0। तो ये रहा E0 और ये रहे इसके 3 कंपोनेंट, VR, VL एंड VC। और ये कौन है? I, करंट। ये सब के अलग अलग फेज हैं। ये फेजर डायग्राम आपको समझना है एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, हम ये देखते हैं कि इसमें I और E दोनों का फेज डिफरेंट है। I जब यहां पर मैक्सिमम था तो E0 यहां जाके मैक्सिमम होता है इतने एंगल के बाद, इतनी देर के बाद। और ये वाला फेस, दिस फेस, लेट अस से दिस इज phi. So phi is what? Phi is the phase difference which has been created between I and V because of all these three. Because of all these three. अब हम इसको थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं। अगर VL और VC बराबर होते, अगर बराबर होते तो ये चीज क्या हो जाती? 0। उस समय E0 कहां आ जाता? I0 के बराबर। ये ऊपर क्यों चला गया? क्योंकि कौन बड़ा था? VL। VL बड़ा था इसलिए ये ऊपर चला गया। VL बड़ा क्यों था? क्योंकि XL बड़ा था। ठीक, अगर VC बड़ा होता, XC बड़ा होता, उसके कारण VC बड़ा होता, तो ये रिजल्टेंट इस तरफ आता, तो E0 इस तरफ बनता। उस समय I आगे हो जाता और V पीछे हो जाता। That would have been a capacitive circuit. इंडक्टिव सर्किट में E आगे रहता है, कैपेसिटिव सर्किट में E पीछे रहता है, I आगे रहता है। और यहां पर हमको वैल्यू नहीं मालूम है, सो दिस इज फॉर एनी सर्किट। इसकी डिफरेंट कंडीशंस, स्पेशल कंडीशन अभी हम लोग निकालेंगे। लेकिन फाई क्यों आया, ये समझ में आया आपको? फाई इसलिए आया क्योंकि VL और VC की वैल्यूज डिफरेंट हैं। और VL और VC की वैल्यूज क्यों डिफरेंट है? क्योंकि XL और XC की वैल्यू डिफरेंट है। समझ गए? ओके, तो ये अब यहां पर बताइए I E से कितना डिफरेंट है फेस में? तो आंसर है फाई डिफरेंट है। अगर I फाई डिफरेंट है तो इसका यहां पर का कंपोनेंट कितना होगा? दैट विल बी I नॉट साइन फाई। दैट विल बी I नॉट साइन फाई। ओके, ये E नॉट ऑलरेडी अभी कितने एंगल पर है? तो आंसर है ये E नॉट अभी कितने एंगल पर है? ओमेगा टी। और I उससे कितना पीछे है? फाई उससे पीछे है। तो I का इक्वेशन क्या बना? I नॉट साइन ओमेगा टी से कितना पीछे कर देना है? फाई। दिस इज इक्वेशन ऑफ I।
ठीक है, सो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5. ये -5 प्लस 5 भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट, वेदर VC इज लार्जर और VL इज लार्जर, वेदर XC इज लार्जर और XC इज लार्जर. ये हो गया I का इक्वेशन. तो I और E में कितना फेज डिफरेंस? 5. फिर से प्योर इन रेसिस्टेंस, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू? 0. इफ इट इज ए इंडक्टर, E पहले चलेगा, I पीछे आएगा, व्हाट इज द फेज डिफरेंस? 5/2. इफ इट इज ए कैपेसिटर, I आगे जाएगा, E पीछे आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस? 5/2. एंड इफ ऑल थ्री आर देयर, देन फेज डिफरेंस इज 5, डिपेंडिंग अपॉन वेदर XL इज मोर पावरफुल और XC इज मोर पावरफुल. राइट. अब इसके बाद मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये एक डायग्राम हम देख रहे हैं. इन दिस डायग्राम दिस इज VL माइनस VC. यहां पर भी अगर हम एक ट्रायंगल बना के ये वाली साइड लेंगे, देन दिस साइड इज ऑल्सो VL माइनस VC. ये इसकी साइड हो गई. अच्छा, अब ये VR है, ये VL माइनस VC है और ये E0 है, ये एंगल फाई है. V तीनों वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है. इफ वी डिवाइड पोटेंशियल डिफरेंस विद इक्वल क्वांटिटी ऑफ I, तो दो रिजल्ट होंगे. नंबर 1, V डिवाइडेड बाय I गिव्स द अपोजिशन टू करंट. रेसिस्टिव सर्किट में V अपॉन I क्या होता है? R. ये V अपॉन I R, V अपॉन I X, V अपॉन I XC. अगर हम सिमिलर क्वांटिटी से किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड्स को डिवाइड करेंगे तो हमको एक सिमिलर ट्रायंगल मिलेगा. ठीक है, जैसे सबका हमने हाफ हाफ कर दिया, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, सेम 5 एंगल वाला राइट एंगल ट्रायंगल फिर मिलेगा हमको. फिर 1/3 से डिवाइड किया, फिर से वही मिलेगा. सो वी गेट ए सिमिलर ट्रायंगल इफ वी डिवाइड बाय I0. तो ये जो है VL माइनस VC, ये कितना हो जाएगा? VR कितना हो जाएगा? VR में R से डिवाइड किया तो क्या बचा? I0. So we get here I0 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये बचा R. VR को I0 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? R. VL VC दोनों को I से डिवाइड किया तो ये क्या बचा? XL माइनस XC. और ये ट्रायंगल को कंप्लीट किया तो ये एंगल कितना आया? 5. क्यों 5 आएगा? बिकॉज इट इज सिमिलर ट्रायंगल. सिमिलर ट्रायंगल क्यों है? बिकॉज बोथ आर डिवाइडेड बाय I. R क्या चीज है? अपोजिशन टू करंट ड्यू टू रेसिस्टेंस, अपोजिशन टू करंट ड्यू टू इंडक्टर, अपोजिशन टू करंट ड्यू टू XC. तो ये जो ट्रायंगल है इसमें सब क्वांटिटीज क्या है? अपोजिशन टू करंट. ओके, इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, इन दोनों का रिजल्टेंट. ये किसकी डायरेक्शन है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E0 एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ I0. अब अगर हम E0 को I0 से डिवाइड करते हैं, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है? ये लाइन रिप्रेजेंट करती है E0 डिवाइडेड बाय I0, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? VR अपॉन I0. ये किसको रिप्रेजेंट करती थी? VL अपॉन I0 माइनस VC अपॉन I0. तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है? E0 अपॉन I0. अब E0 अपॉन I0 क्या होता है? E0 अपॉन I0 वोल्टेज अपॉन करंट इज अपोजिशन टू करंट. तो ये अपोजिशन टू करंट है. ये कौन सा अपोजिशन टू करंट है? अभी तक हम पढ़ चुके हैं. ये अपोजिशन टू करंट कौन सा है? रेसिस्टेंस, विच इज ड्यू टू कोलिजन्स.
ये अपोजिशन टू रेसिस्टेंस इंडक्टिव विच इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इन द इंडक्टर. दिस इज अपोजिशन ड्यू टू कैपेसिटर विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन कैपेसिटर्स. तो ये क्या है? E naught upon I. Answer, this is combination of all the three, the combined effect of all the three. This is not a new opposition. Opposition में हम चौथा opposition नहीं ढूंढ रहे. What we are telling, it is only a combination. So this is, ये जो हमने निकाला विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थ्री, इसका सिंबल हमने बनाया Z. और ये Z क्या है? कंबाइंड अपोजिशन. और ये कंबाइंड अपोजिशन क्या करता है? करंट को अपोज करेगा. अपोज करेगा तो करंट को कम करेगा, करंट को इंपीड करेगा. इंपीड करेगा इसलिए हमने इसका नाम रखा इंपीडेंस. So what is impedance? Impedance is opposition to current. Inductance is opposition to current due to combined effect of resistance, inductive reactance and capacitive reactance. This is impedance. ठीक है. अब अगर हमको R की वैल्यू मालूम रहती है, सबकी यूनिट ओम, इसलिए इंपीडेंस की यूनिट भी ओम. हम इंपीडेंस को नापेंगे कैसे? तो इंपीडेंस को नापने के लिए V अपॉन I, E नॉट अपॉन I नॉट. एसी सर्किट में एट एनी इंस्टेंट E अपॉन I इज इक्वल टू इंपीडेंस. रेसिस्टेंस और XC और XL से क्या रिलेशन है इसका? तो आंसर है, ट्रायंगल से देखिए, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड हियर Z is represented by in magnitude by length of this side. So Z is equal to hypotenuse is equal to root of square of both the arms, R square plus XL minus XC whole square. This is impedance. So impedance is a combined effect of resistance and XL, and how they are to be combined? They are to be combined in this way. Okay, तो ये है impedance. The unit of impedance ओम. क्यों? क्योंकि कोई भी अपोजिशन टू करंट है, उसकी क्वांटिटी हम क्या रखेंगे? ओम. दैट इज अगेन E अपॉन I. तो E नॉट अपॉन I नॉट इज इक्वल टू Z. I इज इक्वल टू E नॉट अपॉन Z. ये करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन अपोजिशन. So this we have studied the combined effect of all the three circuits. अब अभी तक हमने ये निकाला कि तीन सर्किट में E का फॉर्मूला ये, I का फॉर्मूला ये, तीसरा कंबाइंड अपोजिशन, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस यहां से आएगा. कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अपोजिशन इज दिस, ये आ गया कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अपोजिशन, और ये हमने इसको डिफाइन किया. अब इसके बारे में और आगे स्टडी करते हैं. इन दिस सर्किट द करंट इज फ्लोइंग. देयर आर कंडीशन व्हेन द करंट इज मैक्सिमम एंड द करंट इज मिनिमम. Very naturally we know the current will be maximum when opposition is less.
and the current will be minimum when opposition is more. Who is driving force? Driving force is E naught, EMF. अगर अपोजिशन कम होगा, Z की वैल्यू कम होगी, तो करंट ज्यादा होती जाएगी. ओके, Z की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? फिर से इसी को हम लेते हैं. Z इज इक्वल टू R स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC. XL को हम क्या लिख सकते हैं? L ओमेगा माइनस 1 अपॉन C ओमेगा स्क्वेयर. दिस इज इन टर्म्स ऑफ L एंड C. राइट. अब ये इंपीडेंस है. दिस इज अ सर्किट कंटेनिंग ऑल द थ्री. हम लोग ऐसे सर्किट भी बना सकते हैं जिसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट हो, रेसिस्टेंस एंड इंडक्टेंस. देयर इज नो कैपेसिटर. ठीक है, वी कैन ऑलवेज मेक इट. उसमें कौन गायब हो जाएगा? ये वाला पोर्शन. अच्छा, इन केस देयर इज नो इंडक्टर, ये गायब हो जाएगा. तो देखिए, सर्किट विथ R and L, Z inductive is equal to और इसका ये जो ट्रायंगल आप यहां देख रहे हैं, दिस इज वेरी फेमस ट्रायंगल एंड इस ट्रायंगल का नाम है इंपीडेंस ट्रायंगल. इंपीडेंस ट्रायंगल. अगर सिर्फ R और L है, कैपेसिटर नहीं है, तो इंपीडेंस ट्रायंगल कैसा होगा? देखिए, दिस इज R एंड दिस इज VL. V अक्रॉस R, V अक्रॉस L. या हम ये कह सकते हैं कि यहां पर सिर्फ L की वैल्यू रहेगी. ये in this case L will be very large and therefore phi will also be very large. XL माइनस XC होता था, वो माइनस XC हट गया तो XL बहुत बड़ा हो गया. फाई की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी. सो दिस इज इंपीडेंस ट्रायंगल फॉर विच सर्किट? यस, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज वेरी लार्ज. तो यहां पर फाई कैसा होगा? पॉजिटिव. और यहां पर फाई कैसा होगा? नेगेटिव. Z की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी? Z इन कैपेसिटिव सर्किट इज रूट R स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन C ओमेगा स्क्वेयर. सो इसमें हम देख रहे हैं, अगर इंडक्टर कैपेसिटर नहीं है तो E विल ऑलवेज लीड I. ये किसकी डायरेक्शन है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ I एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E. दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस E. तो E इज लीडिंग कंपेयर टू I एंड इन दिस I इज लीडिंग कंपेयर टू E. ओके, तो ये दोनों सर्किट हो गए. तो देखिए, अब हमने एसी सर्किट में इंपीडेंस फैमिली बनाई.
अगर तीनों उसमें प्रेजेंट हैं R, L और C, देन इट इज इम्पीडेंस। अगर उसमें C नहीं है देन इट इज इंडक्टिव इम्पीडेंस। L नहीं है तो कैपेसिटिव इम्पीडेंस। ये वाला कौन सा है? इंडक्टिव इम्पीडेंस। और ये वाला कैपेसिटिव इम्पीडेंस। लेकिन आप देख रहे हैं इसका नाम क्या है? इम्पीडेंस। सो इम्पीडेंस इन एसी सर्किट इज अपोजिशन टू करंट, और इसके अलग अलग क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं। जनरल नेम इज इम्पीडेंस। If it is only due to inductor, inductive impedance. If it is only due to capacitor, capacitive impedance. If it is only due to resistance, then it is resistive impedance, which has the value of R only. Okay. तो ये AC में opposition to current होता है, and this opposition to current decides whether phase of the current will be before E, आफ्टर E और along E, ये डिसाइड करते हैं। ओके, नाउ करंट इन AC हमने पढ़ा है, करंट इन AC इज इक्वल टू E नॉट अपॉन Z। इससे हमको पता लगता है I करंट मैक्सिमम कब होगी। तो आंसर है मैक्सिमम तब होगी जब Z मिनिमम होगा, देन करंट विल बी मैक्सिमम, एंड करंट मेक्स पावर। तो पावर भी कब मैक्सिमम होगी? जब Z मिनिमम होगा। ओके, सो फॉर मैक्सिमम करंट द Z शुड बी मिनिमम, एंड वी विल नाउ स्टडी व्हाट आर द कंडीशन ऑफ मिनिमम Z। फॉर मैक्सिमम करंट इन AC सर्किट Z शुड बी मिनिमम। अब देखिए, इसके लिए हम पहले स्टडी करते हैं इफेक्ट ऑफ ओमेगा इन Z। हमने ओमेगा से बने हुए दो इंपीडेंस देखे हैं। एक इंपीडेंस है इंडक्टिव इंपीडेंस, जिसको हम रिएक्टेंस कहते हैं। अगर ओमेगा इंक्रीज होगा तो एक्सएल की वैल्यू क्या होगी? यहां देखिए, अगर ओमेगा इंक्रीज हुआ तो एक्सएल की वैल्यू इंक्रीज। हाँ, इस पर कमेंट करिए। अगर ओमेगा इंक्रीज होगा तो यस, ये हम लोग पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। अगर ओमेगा इंक्रीज होगा तो ये वाली वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और ये वाली वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। उल्टा कर दो, अगर ओमेगा डिक्रीज हो गया तो फिर क्या होगा? ये वैल्यू डिक्रीज और ये वाली वैल्यू इंक्रीज, दोनों में चेंज होंगे। राइट, नाउ कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट क्या होगी? देखिए, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट Z should be minimum। अब Z मिनिमम होकर कितना हो सकता है इसमें बताइए। रेसिस्टेंस L ओमेगा माइनस C ओमेगा। बाय चांस अगर हम इन दोनों को इक्वल कर दें तो इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। XL माइनस XC, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये किया जा सकता है बाय डिजाइनिंग
a suitable value of inductor and capacitor, this can be made 0. अगर ये 0 हो गई तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी. R को हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इट इज ए हार्डवेयर पार्ट, तो जो रेसिस्टेंस है सर्किट का वो रहेगा. इसको हम कुछ नहीं कर सकते, बट वी कैन चेंज दीज वैल्यूज एंड दिस कैन बी मेड 0. उस समय Z की वैल्यू कैसी होगी? मिनिमम. Z की वैल्यू मिनिमम. सो दिस इज द कंडीशन फॉर Z टू बी मिनिमम. Condition for Z to be minimum is XL should be equal to XC. XL should be equal to XC. क्यों? अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा. और L omega should be equal to 1 upon C omega. This should be the condition. Okay. L omega is equal to C omega, or omega square is equal to 1 upon LC, or omega is equal to 1 upon root LC. Omega is equal to 1 upon root LC. ये कंडीशन है, यानी L और C की वैल्यू हमको ऐसी चॉइस करनी है कि जो सप्लाई हो रही है कहाँ? यहाँ पर देखिए, यहाँ जो हम E लगा रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? ओमेगा. हमने उसके अनुसार ही L और C की वैल्यू चुनी. कैसे? जैसे हमको L की वैल्यू मालूम है तो C की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ देखिए, C इज इक्वल टू 1 अपॉन L ओमेगा स्क्वायर. अगर हमको L की वैल्यू, इंडक्टर की वैल्यू मालूम है, ओमेगा की वैल्यू मालूम है कि कितनी फ्रीक्वेंसी की करंट दे रहे हैं, तो हम किसकी वैल्यू चुनेंगे? C की, और उस C की वैल्यू को वहां फिट कर देंगे. वो वाला C जब हम फिट करेंगे तो हमने ये कंडीशन फुलफिल कर दी. अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई, ये कंडीशन फुलफिल हो गई, ये कंडीशन फुलफिल हो गई, ये दोनों इक्वल हो गए, और अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो Z कैसा हो जाएगा? मिनिमम. और अगर Z मिनिमम हो गया तो करंट का क्या होगा? करंट विल बी मैक्सिमम. Z टू बी मिनिमम. सो आपको याद रखना है, दिस इज द कंडीशन फॉर Z टू बी मिनिमम. अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी में चेंज करते हैं तो ओमेगा किसके बराबर है? 2 पाई f, 2 पाई न्यू. तो न्यू कितना होगा? न्यू इज इक्वल टू 2 पाई, यहां नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई रूट LC. दिस इज वेरी वर्सेटाइल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ये याद कर लीजिए. फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? 1 अपॉन 2 पाई रूट LC. उस समय Z की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम. अगर Z की वैल्यू मिनिमम है तो कितनी है? हाउ मच? तो आंसर है Z इज इक्वल टू R. देख लीजिए, ये कितना हो गया? 0. रूट ऑफ R स्क्वायर इज R. तो Z की वैल्यू क्या होती है? R. अब यहां पर हमने ये तीनों फिट किए हुए, तीनों मिलाकर क्या बनाते हैं? Z, अपोजिशन. लेकिन अगर XL इज इक्वल टू XC हो गया तो ये पूरा पोजीशन सिर्फ किसके बराबर हो गया? R के बराबर, क्योंकि ये दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया. तो अपोजिशन सिर्फ किसके कारण होता है? R के कारण. दैट इज रियल अपोजिशन. समझ में आया? उसको हम डिलीट नहीं कर सकते, उसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते. XL और XC को कैंसिल आउट कर सकते.
ओके, Z इज इक्वल टू R। अब I की वैल्यू कितनी होगी? I मैक्सिमम इज इक्वल टू E नॉट अपॉन Z मिनिमम, और Z मिनिमम कितना होता है? R। ये आपके न्यूमेरिकल्स में ये बहुत काम आता है। What is the maximum possible current we can get in a circuit? Okay, by making this circuit in such a way that XL is equal to XC, the maximum current will be E naught upon R. This is the maximum current. और R के साथ आप कुछ भी जोड़ते जाइए, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, करंट की वैल्यू कम होती जाएगी। So this is the maximum current we can get in a circuit, and this is minimum value of Z. Is it clear to you? Okay.